Let me welcome you, my dear students. My name is Saima and I am teaching you the subject 14th to 19th century poetry. This is our first learning session with MA English second semester. In this session, we would like to learn about the 14th century poetry. The way we go ahead, the concept is that we would like to find out that what is poetry and what is the introduction of 14th century poetry. Now I am going to share you the outline of today's lecture that we will discuss today. Introduction to 14th century poetry, historical development of poetry from allegorical to realistic, introduction to Geoffrey Chaucer and his work The Canterbury Tale. Let's start the introduction first, that what is poetry. Different writers tried to explain or tried to interpret poetry in different ways. We will have a look some of these definitions of poetry for our understanding to see what is poetry and how it is different from prose and how it is different from any ordinary piece of writing. Aristotle defines in his book on Poetics that the distinction between historian and poet is not in the one writing prose and the other verse. Prose और वर्स में जो फ़र्क है, प्रोस इज़ द सिंपल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, लेकिन पोइट्री में ये सीक्वेंस फॉलो नहीं होता. इन पोइट्री द पोइट कैन रीअरेंज द वर्ड्स टू सूट हिज own needs. He might start it with the verb or he might start it with the preposition or a word. तो सिंपल ये कि इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड ऑर्डर या वर्ड अरेंजमेंट नहीं होता. सो द वर्ड्स इज डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग और द थीम एंड इट इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइट, दैट ये पोइट पर मुनहसर है कि वो किस तरीके से क्या अफेक्ट कन्वे करना चाह रहा है. मोर ओवर द वन डिस्क्राइब्स द थिंग दैट हैज़ बीन and the other a kind of thing that might be. So historian writes about something that has been taken place and the other kind of thing that might be. So in poetry, the poet describes the possibility in future. They describe something that they want to see in the society. Hence poetry is something more philosophic and of graver import than history. So Aristotle, here is the point of Aristotle that in his way the poetry is more serious, more philosophic in nature as compared to prose, because poetry discusses the things that might happen. There is possibility of that thing that it might occur in the way, but as compared to history, because history states something as it happened in the past, since its statements are of the nature rather of universals, whereas those of history are singulars. So here in history there are a particular geography or a particular region, but in the case of poetry the subject matter is universal, so it can be applied to any region or it can be applied to any society. So this was the definition by Aristotle. Let's discuss the definition by Samuel Johnson. He says that poetry is the art of uniting pleasure with truth. He says सच और हैप्पीनेस को कंबाइन कर दिया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड पोइट्री. इफ़ यू टॉक अबाउट दी वर्ड्सवर्थ सेज अबाउट पोइट्री दैट पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. It takes its origin from emotion
recollected in tranquility. So according to Wordsworth, poetry is something that comes directly from heart, which affects the powerful feelings. कि आपका सिर्फ फीलिंग का इजहार होता है पोइट्री में. लाइक आपने किसी जगह का एक्सपीरियंस किया, आपके जो इमोशन, जो फीलिंग्स आपके माइंड में आई, अगर आप उनको वर्ड की फॉर्म दे देंगे तो दैट इज कॉल्ड पोइट्री. लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ 14th century poetry. That 14th century poetry starts with John Gower. John Gower was an English poet and a contemporary of William Langland and a Pearl poet. He was a personal friend of Geoffrey Chaucer. इसने इंग्लिश लैंग्वेज को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया और ये दरबारी शायरी लिखता था. He was remembered primarily for 3 main works. Like the first one is Mirror de l'Homme, the second one is Vox Clemens, and the third one is Confessio Amantis. These are 3 poems of John Gower, and these 3 long poems written in French, Latin and English respectively, which are united by common moral and political themes. यानी इनमें हमें moral और political themes ही मिलती हैं. Then we can say that 14th century poetry is basically the age of Chaucer. Means हम अगर 14th century की बात करें तो that is the age of Chaucer. And it is also called the backbone of English poetry. That Chaucer ने English poetry का आगाज़ किया था. And it is the beginning of Renaissance age or Renaissance period. And it is the revival of alliterative poetry. अगर हम बात करें एंग्लो सेक्सन पीरियड की तो उन्होंने स्टार्ट लिया था एलिटरेटिव पोइट्री का, लेकिन जब उन्हें शिकस्त हुई थी नॉर्मन से तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो आया उसमें उन्होंने एलिटरेटिव पोइट्री को फोकस नहीं किया था. सो वी कैन से दैट इट इज़ द रिवाइवल ऑफ एलिटरेटिव पोइट्री. देन वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री. In the past, we can see that the harsh word view are found in it. Then it is based on formal speech. It is based on elevative language, and we can find out the irony in it. सो अगर हम बात करें चौसर की तो ये सब चीज़ें हमें चौसर में मिलती हैं. चौसर ने हार्श वर्ल्ड व्यू को हमें फोकस करके दिखाया है विद फॉर्मल स्पीच से, एंड एलिवेटिव लैंग्वेज यूज़ की है और आयरनी को डिस्कस उसने आयरनी को यूज़ करके चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है. देन वी कैन से दैट कि हमें कंट्रास्ट ऑफ पेजन एंड क्रिश्चियनिटी का मिलता है इसमें. पहले की बात करें तो हमें पहले फेट, पास्ट, वायलेंस एंड वैल्यूज़ ऑफ वेरियर सोसाइटी के बारे में पता चलता था, क्योंकि इसके बारे में ही लिखा जाता था पहले. देन वी कैन से दैट चौसर स्टार्टेड नैरेटिव पोम्स. हमें नैरेटिव पोम्स जो नज़र आती हैं वो चौसर की राइटिंग में नज़र आती हैं. मीन्स ही स्टार्टेड द allegoric things to realistic. एलेगोरी है क्या? ये एक पोइटिक फॉर्म है जिसमें हमें रियल वर्ड की चीज़ें नज़र आती हैं या रियल वर्ड से रिजेंबलेंस नज़र आता है. तो नैरेटिव पोम है तो इसमें हमें ये चीज़ें भी मिलती हैं. देन हमें आल्सो जो मिलता है इसमें दैट इज़ अ कंट्री रोमांस. ही फोकस्ड ऑन द कंट्री रोमांस. इससे पहले जो भी हमें पोइट्री मिलती थी उसमें कंट्री रोमांस पर बात नहीं होती थी. दैट वाज ऑल अबाउट वॉर एंड हमें जो भी चीज़ें मिलती थी वो इसी के अकॉर्डिंग ही मिलती थी. देन ही टॉक्ड अबाउट द फोक टेल. क्रिश्चियनिटी मोरल पोम्स बिगेन टू सरफेस. हमें मतलब उनकी चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ उसी पे ही डिपेंडेंट है.
not only in English and Latin but French as well. Then he started epic and elegy gave way to romance. पहले इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा जाता था, देन रोमांस की तरफ आना शुरू हो गए. देन टेल ऑफ एडवेंचर एंड ऑनरेबल डीड्स एंड लिरिक्स को हमने डिस्कस किया. If we talk about the development of poetry, then it move on to the story of travel and adventure. हमें ये बहुत पहले मिलता था, लेकिन इसी को फॉलो भी किया है. अगर हम चौसर की बात करें, लेकिन चौसर ने थोड़ी सी इनोवेशन भी की है. उसने सेंट लाइफ को डिस्कस किया है, एलेगोरिकल टेल्स की बात की है. फर्स्ट ग्रेट कैरेक्टर पेंटर है बेसिकली चौसर, तो उसने पोर्ट्रेट किया है रियल लाइफ कैरेक्टर्स को. कैरेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ मैन एंड वुमेन. तो उसने पहले इन लोगों को कीन ऑब्जर्व किया, देन ही स्टार्ट राइटिंग ऑन इट. देन ही ब्रिंग एटमोसफियर ऑफ रोमांटिक इंटरेस्ट अबाउट मैन एंड वुमेन. इससे पहले इन पर बात नहीं की जाती थी. ये जो रियल लाइफ के कैरेक्टर्स थे उसको हमें डिस्कस करके दिखाया गया है चौसर की पोइट्री में. नाउ वी विल डिस्कस दैट जेफरी चौसर है क्या, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं. चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बिकॉज ही मेड द इंग्लिश लैंग्वेज रिस्पेक्टेबल. Most common people during this time was spoken Middle English. Although educated people wrote in Latin and French. Let me discuss how. उस वक्त की जो चर्च की लैंग्वेज थी दैट वाज फ्रेंच, और मोनार्क उस वक्त लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते थे. कॉमन पीपल वर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज. So English was not a language that was taken seriously. By writing poetry in English, Chaucer gave respect to everyday language spoken by common people. Geoffrey Chaucer is a great English poet of medieval period or ages. He is the first poet of national importance, जिसको दरबार में इज्जत दी गई. And he is an author, poet, philosopher and alchemist. Chaucer also maintained an active career in the civil service as a bureaucrat, as a courtier and as a diplomat. He travelled in Flanders, France, Spain and Italy, where he observed various types of men, manners and fashions which highly influenced him for his literary creation. Chaucer was born in London around 1343. Precise date and location of his birth remain unknown, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पैदा हुए थे. He was the son of a wealthy London vintner, wine merchant. He educated in St. Paul Cathedral School and later at Inner Temple where he studied law. उसने लॉ की एजुकेशन हासिल की थी. In 1357 he became a courtier, diplomat and a civil servant. In 1368 to 78 he was sent to France, Genoa and Florence, where he influenced by the work of authors like Dante, Boccaccio and Froissart. He was died in 1400 and was the first poet to be buried in Westminster Abbey in Poets' Corner. That was called the Poets' Corner graveyard. Let's discuss the work of Geoffrey Chaucer. He started his early period writing in 1370, in which he wrote translation of Roman de la Rose. It was written in French language. The next book is the Book of Duchess, and the middle period was started up to
century 1387. It was written in Latin, and we can say that the name of the books are The House of Fame, The Parliament of Flowers, and the translation of Consolation of Philosophy, Troilus and Cressida, and The Legend of Good Women. The last period, that was after 1387, it was written in English. And we can say that the name of the book was The Canterbury Tales. The Canterbury Tale is the famous work of Chaucer. ये चौसर का एक ऐसा वर्क है जो कंप्लीट ना हो सका. वो इसको कंप्लीट लिखना चाहते थे मगर लिख ना सके. इससे पहले ही उनकी डेथ हो गई और उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया या उनको वहाँ बरीड किया गया. तो वो पहले इंसान थे जिनको वहाँ पर दफनाया गया था. कैंटरबरी टेल के अलावा चौसर ने एक और वर्क भी लिखा था. उन्होंने एक एलजी लिखी थी अपनी वाइफ के लिए. दैट वॉज द बुक ऑफ डचेस, और वो भी बहुत फेमस हुई थी. द सेलिएंट फीचर ऑफ जेफरी चौसर राइटिंग इट इज़ द गिफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड डिस्क्रिप्टिव पावर. हम उनकी कोई भी अगर उठा के देखें या फिर हम सिंपली बात करें कैंटरबरी टेल की, तो हम देखते हैं कि वो स्टोरी टेलिंग मेथड से लिखी गई है और डिस्क्रिप्टिव पावर उसमें बहुत ज़्यादा है. देन द यूज़ ऑफ म्यूज़िकल एलिमेंट्स, हमें उसकी पोइट्री में म्यूज़िकल एलिमेंट्स भी मिलते हैं. देन वी टॉक अबाउट द पर्सनल टचेस, चार्मिंग, ह्यूमर. हमें ये चीज़ें मिलती हैं इसकी अगर हम राइटिंग पढ़ें चौसर की या कैंटरबरी टेल को अगर हम पढ़ें तो हमें क्या चीज़ें मिलती हैं. हमें इसमें चार्मिंग चीज़ें मिलती हैं, हमें ह्यूमरस वे में लिखा हुआ मिलता है. हमें ये रेयरली फिलोसॉफिकली हमें ये इसमें मिलती हैं चीज़ें, लेकिन वो रेयर हैं. देन वी टॉक अबाउट कि सॉफ्टनेस इन नरेशन है इसकी. देन इसका जो ह्यूमैनिटी की तरफ जो पेरिनल इंटरेस्ट था वो इसमें डिस्कस किया गया है. देन हैप्पी वर्ड इसमें डिस्कस किया गया है, ना कि उसको हम हार्श वर्ड अगर कहें तो इसमें हार्श वर्ड इसने एक बहुत सॉफ्ट वे में आयरॉनिकली लिखकर चीज़ों को डिस्कस किया गया है. नाउ वी विल डिस्कस द कैंटरबरी टेल कि वो है क्या. कैंटरबरी टेल इज़ बेसिकली इट इज़ अ पोम विच इज़ रिटन इज लॉन्ग नरेशन. It is written in long narrative, and it is we can find in it that it is a hypocrisy of church. It talks about the hypocrisy of church, कि चर्च में हो क्या रहा है उसको उसकी एक अंदर की शेप जो उस वक्त के चर्च में हो रही थी ह्यूमरस वे में हमें वो इसमें लिखा हुआ नज़र आता है कैंटरबरी टेल. Then it represents the social ranks. हमें जो सोशल रैंक्स उस वक्त जो थे सोसाइटी में उसके बारे में दिखाया है चौसर ने लिखकर. Then we can say that it is a artistic representation of Chaucer. उसने इस तरह की करेक्टराइजेशन की है कि वो एक आर्टिस्टिक वे में हमें नज़र आया है. देन इसने जो टोन यूज़ की है दैट इज़ टेरिकल. सेट्रिकल जो भी चीज़ें हमें यूज़ की हैं, सटायर यूज़ की है इसमें, तो दैट इज़ कॉल्ड एक सेट्रिकल टोन उसमें यूज़ किया और इसी वजह से हमें ये एक बहुत ह्यूमरस वे भी इसमें मिलता है. देन जो करेक्टराइजेशन है दैट इज़ यूनिवर्सल करेक्टराइजेशन, यानी अगर आप इसे पढ़ें तो यू कैन फील दैट कि ये अब भी ये चीज़ें पाई जाती हैं. ये पिकर हम सिंपली कह सकते हैं ये पिकरस है इन ट्रेडिशन. अगर आप ट्रेडिशन को देखें तो ये इसने ट्रेडिशन को फॉलो किया है, लेकिन एक न्यू इनोवेशन लाई है इसमें. एक फ्रेम ऑफ नैरेटिव है, यानी इसके अंदर भी हमें नरेशन नज़र आती है. सो द नेक्स्ट इज इट शुड बी एन इमेंस वर्क ऑफ 124 stories. Only 24 were written, all these but 2 were written in verse. हमें ये चीज़ें इसमें नज़र आती हैं कि हमें ये वर्स में मिलती हैं. अगर हम बात करें तो सब ने इसमें स्टोरीज सुनानी थी और
जो स्टोरी सुनानी थी वो कुछ 124 है, लेकिन जो हमें रिटन फॉर्म में मिलती हैं दैट इज़ 24, क्योंकि मैंने कहा है कि ये वो कैंटरबरी टेल है जो कि कंप्लीट करना चाहते थे चासर, बट वो कंप्लीट ना कर सके ड्यू टू हिज डेथ. Then the tales covers all the major type of medieval literature that we can find in it: the country romance, folk tale, beast fable, and story of travel and adventure. Saint life also discussed in it, and it is an allegorical tale. Then we can say that the personality of the host afford a clear string of connection from the first ऑफ द लास्ट टेल. मीन हम इसकी फर्स्ट टेल करें और लास्ट टेल भी पढ़ें तो हमें क्या मिलता है कि हमें एक क्लियर स्ट्रिंग इसमें कनेक्शन नज़र आ रहा होता है, किस तरह से हमें जो पोइट है उसने किस तरह से चीज़ों को डिस्कस किया है. देन मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज इन द टेल्स आर drawn from actual people and events in his life. मीन्स जो उस वक्त की सोसाइटी में काम हो रहा था, जो एक्चुअल करेक्टर्स थे, जो कुछ था सोसाइटी में, वो हमें डिस्कस करके दिखाया गया है. सो बेसिकली इट इज़ अ नरेशन, इट इज़ अ नैरेटिव पोएम, और वी कैन सिंपली से दैट इट इज़ अ नैरेटिव पोएम ऑफ Chaucer. Chaucer chose to write in English, an important contribution to let the English becoming the language of England. मीन्स ये वही बात है, उस वक्त जो कॉमन लैंग्वेज थी, जो कॉमन पीपल में बोली जाती थी, दैट वाज इंग्लिश. एंड मोनार्क्स जो थे उस वक्त दैट वर यूजिंग द, हम सिंपली कह सकते हैं कि वो लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते थे, और जो उनके चर्च में बोली जाती थी दैट लैंग्वेज वाज फ्रेंच लैंग्वेज. सो वी कैन सिंपली से दैट कि उस वक्त के कॉमन लोगों को जो रिस्पेक्ट दी गई, उनकी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दी गई, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ चॉसर. और उसकी वजह से ये लैंग्वेज हमें नज़र आती है. नाउ इट इज़ फेमस इन, सो सिंपली वी कैन से इट इज़ यूज्ड इन इंग्लैंड. दिस पीस इज़ रिटन इन कपलेट ऑफ आयम्बिक पैरामीटर. हमें ये कपलेट एंड आयम्बिक पैरामीटर में नज़र आती है ये पूरी पोम. सो लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज़ कपलेट. लेट मी डिस्कस हेयर व्हाट इज़ कपलेट. कपलेट इज़ द पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइन्स ऑफ पोइट्री दैट क्रिएट ए कंप्लीट थॉट और आइडिया. मीन्स हमें किसी भी दो वर्ड्स में अगर वो एक कंप्लीट आइडिया मिलता है, दैट इज कॉल्ड कपलेट. देन आयम्बिक पेंटामीटर. सो हम इसके बारे में सिंपली ये कहेंगे कि पहले तो मैं बताऊं कि मीटर है क्या. मीटर किसी भी पोइट्री में रिदम का काम करता है. लाइक किसी वर्ड पर ज़्यादा स्ट्रेस और किसी पर कम स्ट्रेस दी जाए तो उससे एक साउंड क्रिएट होता है, लाइक डी डम डी डम. इसको हम मीटर कहते हैं. Now we talk about the iambic pentameter, or simply we can discuss that what is iamb. Iamb is जब हम दो syllable को मिलाकर iamb बनता है. And we can say that कि जब एक वर्ड हम लेते हैं जैसा कि define, ये लफ्ज़ या ये वर्ड दो syllable पर मुश्तमिल है, like D and fine. अकॉर्डिंग आई एम, जब दो सेलेबल हों तो स्ट्रेस सेकंड वाले सेलेबल पर दी जाती है. तो जैसा कि डी हम आराम से बोल लेते हैं, जैसे डी एंड फाइन. फाइन को हम स्ट्रेस दे रहे हैं डिफाइन में, तो दिस इज कॉल्ड आई एम. और अगर ऐसे 5 आई एम हमें किसी भी पोइट्री की लाइंस में मिलें तो दैट इज कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर. सो दिस इज ऑल अबाउट iambic pentameter. Then we talk about the Canterbury Tale. That it is about the pilgrims are traveling from London to Canterbury Cathedral, and they meet at the Tabral Inn in London. The host
Harry Bailey suggests that tell stories to pass the time एज दे ट्रेवल टू कैंटरबरी, कि उन्हें कैंटरबरी में जाना था, तो वो चाहते थे कि वो जो टाइम पास हो वो स्टोरी सुनते हुए जाएं और उनका टाइम पास हो जाए. और द वन हु टेल द बेस्ट स्टोरी विल बी रिवार्डेड विद ए स्पेशल मील व्हेन दे रिटर्न टू लंदन. यानी जब वो वापस आएंगे, जो उनमें से बेस्ट स्टोरी टेलर होगा उसको वो मील मिलेगा. So we can simply say that Chaucer is a master of characterization. He understands human nature and describes people with amazing accuracy and insight. We can notice that Chaucer जो tone इसमें use करता है that is satirical, means उसने satire use की थी. तो let's discuss or we can say that let's take a quick review of today's lecture, in which we discussed poetry, in which we discussed introduction to 19th century poetry and historical development of poetry. We also discussed the background of Geoffrey Chaucer, and also we discussed the Canterbury Tale, or we simply take a look on Canterbury Tale. So this is all about our today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.